हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे। भोलेनाथ बड़े सुंदर है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा सौंदर्य प्रकट किया भगवान भोलेनाथ ने जब दूसरी बार आए। पाचा हाहू फेंट थी गया। बीजी बार अब वो सौंदर्य देख करके मूर्छित हो गई। भगवान गजब का सौंदर्य। भोलेनाथ तो राख वाख इसलिए लगाते हैं, भस्म इसलिए चुपड़ते हैं, और बाघांबर, सर्प के आभूषण, मुंडमाला, जटा, ये सब इसलिए कि अपने उस सौंदर्य को वो छुपाते हैं। यदि उस सौंदर्य को प्रकट कर दिया तो सबके बस की बात नहीं उसको देख सके। मध्याह्न के सूर्य को देखना संभव नहीं। उस सूर्य के प्रकाश में पूरी सृष्टि को देखना संभव है। आपो दृष्टि मा तेज अनोखू, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखू। आप दृष्टि मां तेज अनोखू, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखू। मान बसो हइये आई हसो, शांति स्थापो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़िए घड़ी, कष्ट पावो, दया करी शिव दर्शन आपो। બીજાને વૈભવ દેનારો ભોળોનાથ પણ પોતે વૈરાગ્યની ભૂમિ સ્મશાનમાં રહે છે. જેણે ભોગવી લીધું હોય ને એને વૈરાગ્ય થઈ જાય. નથી અને બહુ આકર્ષણ રહે. એના માટેનું તે બહુ સરસ શિવ પુરાણમાં વિધાન છે कि धर्म पूर्वक कमाई हुई संपत्ति, धर्म पूर्वक अर्थ को और भोगों को जो प्राप्त करता है वो भोग उसको सुख देते हैं और अंत में उन भोगों से वैराग्य होता है. नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक यदि धन घर में आया है तो उससे जो भोग प्राप्त होंगे, भोगते 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 एक दिन उब जाओगे, मन उपराम हो जाएगा, वैराग्य होगा.
लेकिन अनीति का धन यदि घर में आया है, अनीति का पैसा आया है, भोग भोगते भोगते तुम्हें कभी तृप्ति मिलेगी ही नहीं, तुम्हारी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। भोगों से यदि उपराम नहीं होते, वैराग्य नहीं प्रकट होता, तो समझना चाहिए कि ये धन ठीक नहीं है। अधर्म से आया है, अनीति से आया है। तो न हो એને આકર્ષણ રહે, સ્વાભાવિક છે, પણ એકવાર ભોગવી લીધા પછી વૈરાગ્ય થઈ જાય. ભર્તૃહરિએ શ્રૃંગાર શતક પણ લખ્યું ને ભર્તૃહરિએ વૈરાગ્ય શતક પણ લખ્યું. શ્રૃંગાર શતકમાં શ્રૃંગારનું શિખર જોવા મળે, પણ વૈરાગ્ય શતકને વાંચો એટલે આપણને થાય એનો ઈ માણસ છે. આ એક જ માણસ બે વાત કરે છે. એમાં કઈ મોટી વાત છે દેવી? કરીએ. પાર્વતીની ઈચ્છા છે. ભોળાનાથ બેઠા હતા, નિત્ય નિયમાનુસાર યક્ષાધિપતિ કુબેર, અને કુબેરનું પદ પ્રાપ્ત થયું છે ભોળાનાથના અનુગ્રહથી. એની કથા છે શિવપુરાણ. નિત્ય નિયમાનુસાર શિવ પૂજન માટે પધાર્યા. દરરોજ કહેતા, ભગવાન મારે લાયક સેવા બતાવો. અને શંકરજી કહેતા, મારે કઈ સેવા છે જ નહીં, તું જન સેવા કર. તને મિનિસ્ટર બનાવ્યો છે તો જનતાની સેવા કર. બરાબર, એક પદ આપ્યું ને કુબેર. કુબેર વારંવાર શંકરજીને કોઈ સેવા આપવા માટે થઈને પ્રાર્થના કરતા, અને શંકરજી કોઈ સેવા નહોતા આપતા. આજ કુબેર આવ્યા. ભગવાન કઈ સેવા આપો. હા, છે છે. એક સુંદર ભવન નિર્માણ કરવાનું છે, અને પાર્વતીની ઈચ્છા પ્રમાણેનું નિર્માણ કરવાનું. અરે ભોળાનાથ, આજ્ઞા કરો. ખીલ ગયે કુબેર, આજે સેવા મળી. એવું બનાવીએ જગતમાં કોઈની પાસે ના હોય. વિશ્વકર્માને બોલાવ્યા, અને વિશ્વકર્માએ એક જગ્યા પસંદ કરી. નાનું એવું ભવન ના અંતે આખો આઈલેન્ડ લઈ લ્યો, અને આખા આઈલેન્ડ ઉપર આખું નગર બનાવો. સુંદર સુંદર ભવનો બનાવો, અને સ્વર્ણની જ દિવાલો ને બધું હોય, મણીઓ એની અંદર જડેલા હોય, એવું ભવન બનાવ્યું. અદ્ભુત ભવન. ક્યાં નગરી? કારણ કે આટલું મોટું હોય, પછી એનો સ્ટાફ, પાછા સચિવો, બધાને રહેવાના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ વગેરે વગેરે વગેરે. પૂરા નગર બના દિયા. ખુશ થઈને વિશ્વકર્મા કામે લાગી ગયા. કોઈ દી ભોળાનાથની સેવા નથી મળતી, આ પહેલી વાર સેવાનો મોકો મળ્યો છે. વિશ્વકર્માએ પૂરો પ્લાન તૈયાર કર્યો આઈલેન્ડ ઉપર આખું નગર બનાવવાનો. કુબેરે એમાં ફાઇનાન્સ પૈસા લગાવ્યા, ધન લગાવ્યું. દરરોજ કુબેર આવીને પાછા જુએ કેટલે પહોંચ્યું કામ. સરસ મજાનું તૈયાર થઈ ગયું. અને એને જોઈ કે પ્રભુ પધારો જોવા માટે. પાર્વતીને લઈને ભોળાનાથ આવ્યા, દેખાડ્યું. પાર્વતી જોયું, ચકિત હો ગઈ. વાહ, આ તો વૈકુંઠને ઝાંખું પાડે એવું છે. આપણે પાર્ટી કરવી, બધાને નોતરવા. આયોજન કરીશું સમારોહનું. સામાન્ય રીતે હોય મહિલાઓને આવું બધું. ખુશ તો કે હા, બહુ પ્રસન્ન. તો હવે
ગૃહ પ્રવેશનું મુહૂર્ત કાઢો અને ત્યારે વાસ્તુ પૂજા કરીએ, પછી ગૃહ પ્રવેશ કરીએ. એટલે મોટો સમારોહ કર્યો અને વાસ્તુ નિમિત્તે બધાને બોલાવ્યા. વાસ્તુ પૂજન કરવાનું એટલે કોઈ સારો બ્રાહ્મણ, વિદ્વાન બ્રાહ્મણ જોઈએ. એમાં રાવણ આવ્યો. એ દરરોજ આવતો પૂજા કરવા માટે. એટલે આજે ભોળાનાથ એટલે આ જ બ્રાહ્મણ रावण बोले हाँ भगवान, सुंदर नगर निर्माण हुआ है हमारे लिए, पार्वती चाहती थी, सुंदर बना लिया है विश्वकर्मा ने, कुबेर ने, सबने मिल करके गृह प्रवेश करना है, वास्तु पूजा होना चाहिए, तुम कराओगे? बोले पुलस्त्य कुलोत्पन्न प्रभु, અને આપની કૃપાથી બધું જાણો છો, જરૂર કરાવો. તું ગોર. અને રાવણના પૌરોહિત્યમાં વાસ્તુ પૂજા સંપન્ન થઈ અને પછી ગૃહ પ્રવેશની તૈયારી. દક્ષિણા લાવો. ગોરબાપાને દક્ષિણા આપવી પડે ને. એટલે બહુ પ્રસન્ન હતા પાર્વતીજી, મહાદેવજી પણ પ્રસન્ન. બોલે માગને ભાઈ શું જોઈએ? તને જે જોઈએ. રાવણની નજર બગડી કે મારું આવું નગર તો આપણી પાસે હોવું જોઈએ. એટલે કે ભોળાનાથ, જે બંગલાનું વાસ્તુ કર્યું એ બંગલો દક્ષિણામાં દઈ દો. લ્યો ભોળાનાથે કર્યું, બ્રહ્મા અર્પણ માગ્યું. રાવણને દઈને પાર્વતીનો હાથ પકડીને કે હાલો, તો પાછા જઈને શમશાનમાં બેહી ગયા. વૈભવ બીજાને આપી દે એવો અવઢર દાની, પણ પોતે વિરાગી. એને તો ઈ જ ગમે. અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી, સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી. અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી, સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી. ये कस्तूरी तिलकम छोड़ू, आज भस्मना અને પીવા માટે વિષ અમૃત દુનિયાને દઈ દે. શિવ દર્શન શંભુ શરણે પડી, મારું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ ચર્ચા કરતા હતા કે આ ભસ્મ છે એ વિરક્તિ, વૈરાગ્યનું પ્રતીક છે. રુદ્રાક્ષ છે એ સરસ્વતી, વિદ્યાનું પ્રતીક છે. શિવપુરાણ અનુસાર એક ભાવ એવો પણ છે કે શિવ ભક્તો ત્રિવેણીમાં, પ્રયાગમાં નિરંતર સ્નાન કરતા હોય છે, નિમજ્જન કરતા હોય છે, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नो संगम है. तो शिव पुराण के अनुसार शिव का नाम ही गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती.
शिव का नाम ही गंगा। शिव नाम बड़ा प्यारा, बड़ा पावन, गंगा की भांति भुक्ति मुक्ति भक्ति सब देने वाला। शिव भक्त है वो निरंतर शिव का नाम जपता रहता। भस्म यमुना, वैसे भी भस्म का रंग और यमुना का रंग समान। भस्म यमुना, शिव नाम। नाम और नामी में अभेद होता है। नामी गौर है, कर्पूर गौरम, कुंद इंदुदर गौर शरीरा। नाम और नामी में अभेद होता है और उस अनुसार नाम भी गौर है तो गंगा गौर है। तो नाम है गंगा, भस्म है यमुना और रुद्राक्ष है सरस्वती। तो जो भस्म का त्रिपुंड्र कर ले, त्रिपुंड्र धारण कर ले, रुद्राक्ष को धारण कर ले, गले में माला, और रुद्राक्ष के ही आभूषण जो शिव भक्त होते हैं वो तो यहां रुद्राक्ष, यहां रुद्राक्ष, यहां रुद्राक्ष, यहां रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष, यहां भी पहन लेते हैं रुद्राक्ष। तो वो सरस्वती है। और फिर शिव का नाम जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह प्रयाग में निमज्जन कर रहा है, पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो पंचानन महादेव, पंचमुखी, 5 उसकी कृति कार्य, 5 महाभूत से संबंध, इन 5 कार्य का, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का। शंकर जी ने 5 मुख, एना बापा ने 4, एना छोकराने 6, षडानंद, कार्तिकी, અને બીજો ગજાનન, ચેલો દશાનન, શંકરજીનો ચેલો। એક જણાએ પૂછ્યું કે આ ભોળાનાથ આટલું બધું ભીખ માગીને કેમ ખાય? તો કે એમ જ થાય ને, ખાવા વાળા કેટલા, મોઢા કેટલા જુઓ ઘરમાં, ખાવાવાળા મોઢાનો પાર નથી, અને કમાણીમાં જય શ્રી કૃષ્ણ। ખાવાવાળા મોઢા તો જુઓ। કાહે ન માગત ભીખ ફિરે, ભીખ માંગતા કેમ ન ભરે? काहे न मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक कहू अन्न बधेला। अन्न नो एक दाणो नहीं घर में। काहे न मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक कहू अन्न बधेला। मुख एक जो होए तो पूरो परे, मुख एक जो होए तो पूरो परे। मुख ही मुख है घर माही जमेला, मुख ही मुख है केटला मोढ़ापण घर माही जमेला। शीश चढ़े सहसानन, शेषना सहस्र फणा वाळो, 1000 मोढ़ा तो एना। અને ઘરમાં નોકર ચાકર હોય એને તે મમ્મનો તો વ્યવસ્થા કરવી જ પડે ને। ગામડામાં આપણે દાડિયા કરે તો દાડિયા આપવાની જે થાય 1.5 રૂપિયો 150 રૂપિયા દિવસના જે કાંઈ હોય, પણ બપોરના દાળને રોટલા દેવાના, પાછા છાશ રોટલા દેવાના।
તો આપણા સેવકો એ તો આપણે ઘેર જ જમે ને. એટલે શેષ આમ છાયો કરીને, કેમ દરેક ઠેકાણે તમે શિવાલયમાં જાઓ નથી આમ માથે ભોળાનાથની માથે ફરક છાયો કરીને બેઠા. એના જ મોઢા કેટલા, सहस्त्र प्रणाम सहस्त्र मुख, शीस चढ़े सहसानन और गोद गजानन. ખોળામાં ગજાનન દીકરો ગણેશ, એનું પેટ કઈ બે લાડવે ભરાય એવું પાછું. હાથી એને કેટલા મણ જોઈએ કાયમ. शीस चढ़े सहसानन और गोद गजानन. વાહનમાં તો કે બેલ તબેલા. ઢાળિયામાં જે બળદ બાંધ્યો જ ને નંદી, એ લોટકો એ કેટલું ખાઈ જાય. એને કઈ નિરણ જોઈ નિરણ જોઈ નિરણ જોઈ. शीस चढ़े सहसानन और गोद गजानन, बैल तबेला चतुरानन बाप. बापा चार मोढ़ा वाला ब्रह्मा. चतुरानन बाप और पंचानन आप, पोते पांच मोढ़ा वाला पंचमुखी. चतुरानन बाप पंचानन आप और षडानन पूत. દીકરો કાર્તિકેય ષડાનન. चतुरानन बाप पंचानन आप षडानन पूत और दशानन चेला. चेलो आवे दशानन रावण घेर तो बधा जमता જ हालेला બે જા. કોઈ 10 મોઢા વાળો એક એક કોળીઓ લે એટલે 10 ગુણાકાર 10 કરવાના. હવે આટલા બધા ખાવા વાળા, આટલા મોઢા જેને ઘેર, તો કાહે ન માગત ભીખ ફિરે. काहे न मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक कहू अन्न बधेला. એટલે શું થાય, આ સાહિત્ય છે ને એ કવિ કાલિદાસના શ્લોક ઉપરથી હિન્દીમાં બનાવ્યું. કાલિદાસ શું કહે છે? સ્વયં પંચમુખ પુત્રૌ गजानन षडाननौ. पुत्रौ गजानन षडाननौ दिगंबर. પોતે દિગંબર એટલે ઠન ગોપાલ. દિગંબર કથમ જીવેત. स्वयं पंचमुख पुत्रौ गजानन षडाननौ दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेत गृहे. આ અન્નપૂર્ણા જો એના ઘરમાં ન હોત તો આ દિગંબર નું શું થયું હોત? આ ટકી રહ્યું બધું. આટલા મોઢા ખાવા વાળા તોય ટકે ભોળાનાથનો ગૃહસ્થાશ્રમ હાલ્યા કરે. એનું કારણ ઘરે અન્નપૂર્ણા છે. ને અન્નપૂર્ણા તો એવી, આ પરાંબા ભગવતી એવી, કોઈને ભૂખ્યા ન રહેવા દે. काशी में एक बार एक आदमी आया तो काशी में थोड़े दिन रहा तो काशी वाले तो बड़े उछल उछल करके बात करते हैं कि हम तो भाई बाबा विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं और हमारी मां अन्नपूर्णा, और काशी में मां अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं सोने देती. काशी में कोई भूखा नहीं सोता. आज भी आप काशी में जाओ तो काशी वालों से ये सुनने को मिलेगा, काशी में कोई भूखा नहीं सोता. हमारी मां अन्नपूर्णा किसी को भूखा नहीं सोने देती. तो इस आदमी ने सुना तो वो थोड़ा हठीला आदमी था. एम જોઈએ तो गयो अन्नपूर्णा ना मंदिर, बैठा रहा. देखते हैं मां खिलाती है कि नहीं.
तो दूसरे सब लोग खा रहे थे और ये आदमी बैठा था। तो आप वैसे भी विश्वनाथ का दर्शन तो किया है ना, गलियों में होते हुए जाना पड़ता है, हैं? ढूंढी गणेश जी को प्रणाम करके और फिर आगे बढ़ो तो दाहिने हाथ मां अन्नपूर्णा का मंदिर। तो वैसे देखा जाए तो इस तरफ आप जब जाते हो तो इस तरफ आपके बाएं भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, विश्वनाथ का, और आपके दाएं मां अन्नपूर्णा का मंदिर। लेकिन भोलेनाथ जब आपके सामने बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि मां अन्नपूर्णा उनके बाएं हैं, भोलेनाथ के वामांग में, वामांगे च विभाति भूधर सुता। बड़ी भीड़ रहती है मां अन्नपूर्णा के मंदिर में भी। और यहाँ पर रामेश्वर भगवान महादेव का जितना भव्य महालय है उतना ही भव्य महालय पराम्बा भगवती का। तो बैठा रहा, लोग, संकरी गली और दुकान वुकानें चलती है, लोग, बहुत भीड़ तो होती है, लोग खा रहे थे और इस आदमी को देखा कि कब से बैठा है। तो किसी ने आकर के थोड़ी पूड़ी सब्जी दे दी, ले खा ना, हमको तो मां खिलाएगी तो खाएंगे। और बोले मां यहां किसी को भूखा नहीं रखती, तू खा ले, ये सब मां का दिया हुआ है, मां खिलाएंगे तो खाएंगे। नहीं खाया, लोगों ने बहुत प्रयास किया, इसने नहीं खाया। रात में 10 बज गए, भूखा हुआ, भूखा भूखा बैठा रहा। 10 बजे मंदिर बंद हो जाता, मंदिर भी बंद हो गया। ये भूखा है, कहते हैं मां सबको खिलाती, किसी को भूखा नहीं रहने देती। देखते हैं, मंदिर बंद हो गया। रात में 12 बज गए, ये भूखा हुआ बैठा है। रात में मंदिर में वहां अन्नपूर्णा में मां को भोग लगाया जाता है। चांदी के थाल में वो हलवा भोग लगाकर रख दिया गया था। 12 बज गए और कहते हैं पराम्बा भगवती से अपने इस बच्चे की भूख देखी नहीं गई। 12 बजे मां अन्नपूर्णा स्वयं चांदी की थाली में वो हलवा लेकर बाहर आए, उसके माथे पे हाथ रखा। ऐसी हठ नहीं करते, ले खा ले। चाहे पूरा खा ले, नहीं तो सुबह खा लेना, मालपुआ का भोग लगता है, खा ले। और देकर मां चली गई। चांदी की थाली, इसको भूख तो लगी रही थी, जोरों की भूख लगी थी, दिन भर कुछ खाया नहीं था, सब मालपुए खा गया, बड़ा स्वाद आया। और फिर खाकर वहीं सो गया। सुबह में जब पुजारी जी ने मंदिर का द्वार खोला, अन्नपूर्णा मंदिर का, वहां देखा तो मंदिर में वो थाली नहीं थी, चांदी की थाली। अरे क्या हुआ, कोई चोर आया, कोई चोर चोर चोर, तो ढूंढने लगे सबकी चांदी की थाली कहां गई। तो ये आदमी सोया हुआ था और उसके बगल में चांदी की थाली पड़ी। चोर 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 चोर, सब इकट्ठे हो गए, मारने लगे। बोले भैया मैं चोर नहीं हूं, मारो मत। चोर होता तो थाली लेकर भाग गया होता, मैं चोर नहीं हूं। लेकिन मुझे तो अनुभव करना था कि
मां किसी को भूखा नहीं रखती काशी में। मां स्वयं बाहर आई थाली लेकर और मुझे दे करके गई। मैंने मालपुड़े का भोग लगाया, जिम लिया। उसके बाद मैंने बुलाया भी कि भाई थाली ले जाओ, अरे कोई थाली ले जाओ। कोई नहीं आया तो मेरा पेट भर गया था, मैं थका हुआ था तो मैं सो गया। मैं चोर नहीं हूं। मां ने खिलाया, ये थाली प्रमाण है। ये तो अंदर थी ना आपके पास। कहते हैं बात सुनकर अन्नपूर्णा मंदिर का पुजारी मूर्छित हो गया कि पूजा करते करते हमने जिंदगी लगा दी, हमको जो नहीं मिला वो इस पगले को मिला। स्वयं परांबा भगवती ने इसको प्रसाद पवाया। दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णाम नचेत गृहे। भजन ईज जेनो धंधो एवो भोळो नाथ। दिगंबर कांई नहीं एनी पासे अने खावावाळा आटला मोढा पण तोय कोई भूख्યું નથી રહેતું। એનું કારણ अन्नपूर्णा। भिक्षां देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। साधु संतो बधा भिक्षा लेवा बेसे એટલે ગાય अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आ भूमि दक्षिण भारत में जहां हम बैठे हैं, आज दर्शन करने गया था तो मां अन्नपूर्णा परांबा भगवती के मंदिर में श्री यंत्र बताया स्वर्ण का। पुजारियों ने दर्शन कराया और कहा कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपने हाथ से बना करके सिद्ध करके दिया। यहां केरल में कालड़ी में प्रकट हुई वो प्रतिभा आद्य शंकराचार्य। पांच वर्ष के थे शंकराचार्य। नदी के किनारे बसा हुआ गांव और मकान। मां को कहीं दर्शन के लिए जाना था यात्रा में, जैसे आप लोग यहां यात्रा में आए, हम लोग आए। 3 दिन आना जाना लगने वाला था। तो मां ने कहा कि शंकर, हाँ मां, मैं अन्य लोगों के साथ सब लोग जा रहे हैं तो मैं यात्रा करियाऊं बेटा, दर्शन करियाऊं। बोले हाँ मां, हुआ। तो अकेला घर पे रहेगा बेटा? बोले हाँ मां, मैं रहूंगा। देख, घर में परांबा भगवती की पूजा है, तू रोज थोड़ा पानी का छींटा और 1-2 फूल रख देना और दूध का भोग लगाना मां को। करेगा ना? बोले हाँ मां, तू जा, मैं संभालूंगा पूजा इत्यादि। छोटा सा शंकराचार्य, छोटा सा शंकर बालक, 5 वर्ष की आयु। मां गई अन्य लोगों के साथ यात्रा के लिए। और यहां छोटा सा बालक शंकर गया, नदी में स्नान किया, स्नान करके आया। परांबा भगवती की मूर्ति, जल के छींटे दिए, फूल। જાસૂદનું જે ફૂલ છે ને એ માને ચડે, એના ઘણા ઔષધીય ગુણો છે અને દેવી માની પૂજા એ લાલ પુષ્પોથી થાય છે, એના કારણો છે।
बहनों ने मासिक धर्म में कई तकलीफ हो एने लगता रोगो होय ने एमा आ जासूदना लाल जासूदना जे पुष्पो छे આપણે ત્યાં ઘણા ટંકોરીના ફૂલ એને કહે છે એના ઔષધીય ગુણો એ ઔષધિ તરીકે કામ કરે છે नास्ति मूलम अनौषधम ऐसा कोई मूल नहीं है ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो दूध कटोरे में भर करके मां के सामने रख दिया 5 वर्ष के बालक शंकर ने ये शंकराचार्य जी के साथ घटी हुई घटना बैठा है बालक सामने मां ने दूध नहीं पिया धरा रहा वो कटोरा मां की मूर्ति 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय बीतने लगा और ये बालक रोने लगा कि क्यों नहीं पी रही है दूध। मां ने कहा था और मैंने भोग तो लगाया लेकिन ये नहीं पिएगी, तो मां मुझे डांटेगी, कहेगी कि तुमने ठीक से सेवा नहीं की। बालक रोने लगा। वो परिवार की सेव्या भगवती पराम्बा से देखा नहीं गया, प्रकट हो गई, माथे हाथ रखा, क्यों रो रहा है? तो तुम दूध नहीं पी रही हो, कब से भोग लगाया हो? ओह ऐसा है, लाओ। पराम्बा भगवती ने कटोरा उठाया और उस बालक के भाव को देखते हुए मां पी गई। कटोरा रख दिया, लो मैंने पी लिया, बस। फिर रोने लगा। बोले अब क्या है? बोले मां ने कहा था कि भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद तू ले लेना, तुम तो सब पी गई, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ओ मेरे लाल। मां भगवती अंबा ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया और अपने थन से लगाकर दूध पिलाया। विद्या का एमने मावी शंकराचार्य मां जने पराम्बा अन्नपूर्णाए पोते धवડાવ્યો હોય। तव स्तन्यम मन्ये, એટલા માટે શંકરાચાર્ય સૌંદર્ય લહરીમાં કહે છે તવ સ્તન્યમ મન્યે ધરણીધર કન્યે હૃદયતઃ, तव स्तन्यम मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः, पयः पारावारं परिवहति सारस्वत इव, दयावत्यादन्तं द्रविणशिशुरास्वादकवत्, दयावत्यादन्तं द्रविणशिशुरास्वादकवयत्, कवीनां प्रौढ़ानां जननी कमनीय कवयिता, जननी कमनीय कवयिता। भाव देखो, तू तो उत्तर की हिमाचल की बेटी गौरा और मैं द्रविड़ का बालक काला। यहां के भगवती के पुत्र सब श्याम वर्ण के, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ, काला। काला हो तो क्या हुआ, मां को तो बड़ा प्यारा होता है। तू गौरा, मैं काला, लेकिन तूने मुझे गोद में लिया मां, मुझे अपनाया, अपना दूध पिलाया। भगवती मैं तेरा बच्चा हूं,
देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र जब लिखा, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी, अपराध परंपरावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतं, मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु, यथा योग्यं तथा कुरु। अन्नपूर्णा जो घर में न हो तो भोळोनाथ हूँ करत, जेने लुगड़ाना ठेकाणा नहीं, ये आटला बधा मोढाने केम खवड़ावत। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, बोलिए अन्नपूर्णे मात, अन्नपूर्णा मात की जय। बड़ी दिव्य कथा है, काफी समय हो गया आज भी। आओ माता अन्नपूर्णा और भगवान भोलेनाथ का निराजन करें। संध्या आरती की तैयारी हुई। सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, जीवन में कैसा अंधेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है, संदेह ने हमको घेरा हुआ है। मन पंछी भगवन बहुत आज घबराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वास की माला सोनी पड़ी है, विश्वास की माला सोनी पड़ी है। भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है, भगवन सहारा दे मुश्किल घड़ी है। रास्ता दिखा राही तेरी शरण आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों की सरगम पे धड़कन
रामेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। परम पावन परम रम्य यह धरणी महासागर का तट भगवान रामेश्वर का सानिध्य और हम पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों के प्रकाश में शिव चरित्र का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं। और शिव महापुराण के श्लोक भागवत से भी अधिक है, 24,000। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12। और शिव पुराण के 7 खंड, 7 खंडों में शिव पुराण को बांटा। विद्येश्वर संहिता है प्रथम। पिछले कुछ प्रवचनों से हम जो चर्चा कर रहे थे वो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के आधार पर चर्चा हो रही थी। दूसरा है रुद्र संहिता। अब रुद्र संहिता को फिर अनेक खंडों में बांटा गया है। 5 खंड है उसके। प्रथम खंड को सृष्टि खंड कहते हैं, दूसरे खंड को सती खंड कहते हैं। रुद्र संहिता का तीसरा खंड पार्वती खंड है और चौथा कुमार खंड, 5वां युद्ध खंड। ये रुद्र संहिता के खंड। उसके पश्चात है तीसरा शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। उसके भी 2 खंड है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। जिस प्रकार आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध
तो इस प्रकार 7 विभाग में शिव पुराण को विभाजित किया है। ये जो उसके उपखंड है, रुद्र संहिता के और वायवी संहिता के 2, रुद्र संहिता के 5, तो 5 और 2 मिला के हो गए 7, और बाकी वाली 5 उसको मिलाओ तो 12 ही हो गए। तो भागवत जी की तरह ही, जैसे भागवत में 12 स्कंद है, उस तरह से 12 विभाग है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अच्छा, भागवत में तो फिर वैसे 12 स्कंद हम मानते हैं, लेकिन 10वें स्कंद को फिर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की तरह गिनती करी जाए तो, लेकिन 12 स्कंद है भागवत के। और यहां इसके जो उपखंड है, वायवी संहिता के पूर्व खंड और उत्तरखंड, उसको 2 मानो, और रुद्र संहिता के 5 खंड को 5 में ही गिनती करो, वायवी संहिता की 2 के रूप में गिनती करो, तो बाकी वाली संहिता मिलकर के कुछ 12 विभाग हो जाते हैं शिव पुराण में भी। 24,000 श्लोक है। और इसलिए प्राय हमारे शिव पुराण कथावाचक 9 दिन कथा करते हैं। भागवत सप्ताह 7 दिन, 18,000 श्लोक शिव पुराण। जैसे राम नवाह, शिव नवाह। राम जी की चर्चा करोगे तो शिव जी की चर्चा चलनी ही है। राम जी के घर में बैठकर राम जी के लगातार साथ रह करके जिसने राम जी की दैनंदिनी लिखी हो, होता है ना कई महापुरुषों के साथ उनके जो परिकर रहते हैं, वे डायरी तैयार करते हैं। आज महाराज जी को ये मिलने आए, आज इनसे वार्तालाप हुआ, आज महाराज जी का यहाँ पर प्रवचन था, इस प्रवचन में महाराज जी ने आज ऐसा कहा, आज महाराज जी यहाँ पर पधारे, आज यहाँ से चले। डायरी लिखते हैं। तो उसमें जो भी मिलने आया होगा उसका भी उल्लेख, आज महाराज जी से ये मिलने आए, या तो आज महाराज जी इस आश्रम में पधारे और उस आश्रम में परम पूजनीय इन महात्माओं से मिले, बड़ा दिव्य सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया, दैनंदिनी में लिखेगा। तो जो राम जी के सतत साथ रह करके राम जी की दैनंदिनी डायरी लिखेगा, तो जब शंकर जी आए हैं तो उल्लेख करेगा ही कि आज शंकर जी आए, राम जी से मिले, प्रभु के साथ ये वार्तालाप हुआ, प्रभु का राज तिलक हुआ अयोध्या में, बहुत से लोग पधारे, सब देवता पधारे, भगवान भोलेनाथ भी पधारे, और उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ये सब लिखेगा। लेकिन वह राम का परिकर है, श्री राम के साथ रहता है, इसलिए राम केंद्र में होंगे और राम के प्रति उसकी अनन्य निष्ठा होगी। बस उसी भाव से तुलसीदास जी ने राम जी की डायरी लिखी, लगातार राम के साथ रह करके। और उसी प्रकार भगवान शंकर जी के साथ जो रहेगा और शंकर जी के साथ रह करके शिव चरित्र का दर्शन करेगा, तो उसमें राम की बात भी आएगी, विष्णु भगवान की बात आएगी, ब्रह्मा जी की बात आएगी, लेकिन केंद्र में रहेंगे शिव। और शिव जी के प्रति अनन्य आस्था, प्रेम, जो जिसका परिकर है उसका उसके प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने सेव्य के प्रति विशेष प्रेम रहता है, यह स्वाभाविक है।
तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो रामचरित्र में शिव पुराण की बहुत बातें आएंगी और शिव पुराण में रामचरित्र की बहुत सी कथाएं। रुद्र संहिता में प्रथम खंड में, जिसको सृष्टि खंड कहते हैं, नारद मोह का प्रसंग है, जो रामचरितमानस के बालकांड में भी है। भगवान नारायण को नारद जी का शाप हुआ और नारद जी के शाप के चलते भगवान नारायण को मनुज रूप लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। रामावतार के कारणों की चर्चा है रामचरितमानस में, और प्रभु के अवतार के 5 कारण बताए गए। अब आप रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री राम के अवतार के 5 कारणों में 4 कारण तो श्राप की ही कथा है। केवल एक ही कारण है जिसमें वरदान के चलते भगवान इस धराधाम पर मानव रूप लेकर के आए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इसकी चर्चा शिव पुराण में भी है। स्वयंभू मनु शत्रुपा और उससे फिर जो सृष्टि चली उसकी कथा शिव पुराण में भी। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा गोमती के किनारे पर जाते हैं और भजन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि चाहहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, आपके समान पुत्र चाहिए। और भगवान ने वरदान दिया, आप सरिस खोजों कह जाई नृप तव तनय होब में आई। मेरे समान और किसको ढूंढूं, मेरे समान और कोई है नहीं, इसलिए हे राजा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे घर आऊंगा। तो बस यही एक वरदान की कथा है, बाकी वाले 4 कारणों में शाप की कथा है।